Okay, so let me first of all explain the basics, and then Janshrut, I'll ask you to read. Okay. Okay, sir. Okay. So as you all know, students, that in IELTS we have got writing task, and writing task is probably one of the most difficult, sections to score. Many people get a poor score in writing only. So as you know that in writing task 2, you are required. There are 5 types of essays. The first is discussion and give your opinion essay. Second is to what extent do you agree or disagree. Third is problems and solutions. Fourth is cause and effects or problems and solutions भी कह सकते हो, cause and effects भी कह सकते हो. Advantages, disadvantages और question based essay. You can club this problems and solutions or cause and effects. वैसे देखा जाए तो एक ही टाइप के ऐसे हैं, so you can club them. So technically there are 5 types of essays. इसमें so first is discussion based essay, agree or disagree essay, problem solution essays, advantages and disadvantages, and last one is question based essay. मैं चाहूंगा बिल्कुल खुला दिमाग रख के इसको आप सुनेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. ओके, नाउ the thing is, let me give you a small example of how we write an introduction. आपको सबको पता है कि in introduction we need to write 2 or 3 sentences. आपको सबको पता है. और जो पहला सेंटेंस होता है वो है पैराफ्रेजिंग. सो वी राइट द क्वेश्चन प्रॉम्प्ट, सिर्फ उसका वर्ड चेंज कर देते हैं हम लोग, उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, बट मीनिंग रिमेन्स द सेम. द सेकंड स्टेटमेंट इज द थीसिस स्टेटमेंट, जहां पे मैं अपना ओपिनियन देता हूं. एंड फाइनली द आउटलाइन स्टेटमेंट विच इज नॉट मैंडेटरी, मतलब उसको लिखना जरूरी नहीं है. So this is the way by which we are going to write a introduction of any essay. Jansut, there is a voice coming from behind. Can I ask somebody else to help me out? Is it fine? Okay, sir. No problem. Thank you, Jansut. Can anyone help me out, students? Can anyone help me out reading? Yeah, Rajveer will help me out. Thank you, Rajveer. Hello, sir. Yeah, hello. So this is the way, I mean, मैं चाहूंगा सारे लोग उसको ध्यान से देखें. अब मैं चाहूंगा कि ये चीज को देखें. Can you read, Rajveer? Yes, sir. Computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences. Second, discuss both sides of this argument and then give your own opinion. Okay, so this entire is one essay. For example, ये जो है, ये पहला जो है वो क्वेश्चन है, और ये जो है वो ऐसे का क्वेश्चन, आई मीन प्रॉम्प्ट है. आपको ये पता चलता है इससे कि डिस्कशन बेस्ड ऐसे या मुझे क्या करना है. Now I am now going to only read the introduction part. Can you read the introduction? बिल्कुल धीरे राजवीर रीड करो, बिल्कुल धीरे. Yes, sir. It is often argued that ever increasing use of technology such as tablets and laptops in the classroom is a positive development, which will ये wills कह सकते हो या while कह सकते हो. okay, sir. Whilst others disagree and think it will lead to adverse ramifications. Okay. Adverse ramification का मतलब उसका गलत नतीजा, गलत रिजल्ट्स आएंगे. काफी आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर्स का ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में इस्तेमाल होता है. काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है, काफी बोलते हैं वो नेगेटिव ट्रेंड है. आपको दोनों तरफ डिस्कस करना है. मैं चाहूंगा हम लोग डिस्कशन वाला ऐसे नहीं आज करने वाले. आई एम ओनली गोइंग टू टेक डबल क्वेश्चन ऐसे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल दैट हाउ यूजुअली वी राइट एन इंट्रोडक्शन. अब हमारा ओपिनियन देना होता है. प्लीज रीड. I strongly believe that usage of computers in the education field is a positive phenomenon. Exactly. So this is how you are writing a normal discussion based essay. अब जरा इसको गौर कीजिए. Please read. In some parts of the world, it is becoming popular to research the history of one's own family. Why might people want to do this? Is it a positive or negative development? Also read the second question. Yeah. Some people think it would be a good idea for schools to teach every young person how to be a good parent. Do you agree or disagree with this opinion? Describe the skills a person needs to be a good parent. Now, as you can see that this is a question based essay. Sir, question based essay में होता क्या है? आपको 2 सवाल डायरेक्टली दिए जाएंगे. जैसे कि पहला जो essay था उसमें आपको ऐसा कहा था कि डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट एंड गिव योर ओन ओपिनियन. तो आपको दोनों तरफ डिस्कस करना होता है. लेकिन ये जो क्वेश्चन बेस्ड ऐसे होते हैं उसमें आपको ये डायरेक्टली सवाल पूछे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट ऐसे ऐसा लिखा है कि काफी जगह पे ऐसा होता है कि लोगों को
पॉपुलर है कि लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में तहकीकात करें। क्वेश्चन पहला ये है कि व्हाई माइट पीपल वांट टू डू दिस, ऐसा लोग क्यों करना चाहेंगे, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, ये दूसरा सवाल है। और दूसरा जो ऐसे है, सम पीपल थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर स्कूल्स टू टीच एवरी यंग पर्सन हाउ टू बी अ गुड पेरेंट। काफी लोग ऐसा मानते हैं कि स्कूल्स में ही पढ़ाया जाए कि एक आदमी अच्छा पेरेंट कैसे बन सकता है। डू यू एग्री विद और डिसएग्री विद दिस ओपिनियन? क्या ये सही है कि हमें पढ़ाना चाहिए फ्रॉम schools के पेरेंट अच्छा कैसे बना जाए? डिस्क्राइब द स्किल्स अ पर्सन नीड्स टू बी अ गुड पेरेंट। कौन सी स्किल्स हमें होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे पेरेंट बन सके? तो दोनों केसेस में आप देख सकते हो दो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको, जिसको हम कहेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऐसे। सवाल ये उठता है कि सर हम इस ऐसे को कैसे लिखी जाए, कैसे लिख सकते हैं? अब पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये क्या है। इसको पढ़ेंगे जरा, पहली अंडरलाइन राजवीर जी। Yes, sir. Addresses the task only partially. ओके, तो ये जो बाजू में जो हमने लिखा है ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स है IELTS के। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे बैंड, पब्लिक बैंड डिस्क्रिप्टर्स फॉर राइटिंग, तो उसमें 5 बैंड्स, ये जो है 5 बैंड्स है। तो अगर आपने दोनों सवालों का ठीक से डेवलपमेंट नहीं किया, जैसे कि आपने देखा कि आगे वाला जो ऐसे था उसमें आपको 2 सवाल पूछे गए थे, आपने बेहतरीन सा ऐसे लिखा, बट यू हैव नॉट बीन एबल टू गिव जस्टिस टू बोथ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। तो ऐसे केस में आपको 5 बैंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके IELTS का बैंड डिस्क्रिप्टर्स कह रहा है कि अगर आपने एड्रेस किया टास्क को सिर्फ पार्शियली, मतलब अगर आपने दोनों सवालों का ठीक से डेवलपमेंट नहीं किया, तो आप एक्सपेक्ट न करें कि आपको 5 बैंड से ज्यादा मिलेंगे। ये आपको समझना जरूरी है। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, प्लीज रीड। या मेनी Many चिल्ड्रन, children have access to the internet and devices like smartphones, even at very young ages. Do you think this is a good trend? What rules should children follow related to internet and gadget use? सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऐसे। क्वेश्चन बेस्ड ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों सवाल का जवाब इंट्रोडक्शन में ही अच्छी तरह से दे। आपने तो पहला क्या करना है, व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लाइन? राजवीर, कैन यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस ऐसे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? Means, sir, answer of the first question which I read. नो, द फर्स्ट लाइन इज गोइंग टू बी पैराफ्रेजिंग। मतलब आपने क्या करना है, ये इसको पैराफ्रेज करना है। मेनी चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स इवन एट ए वेरी यंग एजेस। अगर आप में से कोई भी इस चीज को समझ नहीं पाता, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो पहली लाइन में आपने क्या करना है कि यू हैव टू पैराफ्रेज दिस, मतलब आपने वो सेंटेंस लिखना है जो जिसका मतलब यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है उससे बिल्कुल निकल के आता है। मतलब ये जो सेंटेंस है, सो योर फर्स्ट सेंटेंस शुड बी एग्जैक्टली द पैराफ्रेजिंग, मतलब यही मतलब निकल के आना चाहिए। आप सेंटेंस दूसरा को इस्तेमाल करें, यू कैन यूटिलाइज डिफरेंट सिनोनिम्स, यू कैन यूटिलाइज द रूल्स ऑफ पैराफ्रेजिंग। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जहां पे आपने दोनों सवाल का जवाब देना है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन राजवीर, कौन सा क्वेश्चन है? Sir, do you डू think यू this is थिंक, trend? क्या ये अच्छा ट्रेंड है? और कौन सा दूसरा सवाल है? What rules should children follow related to internet and gadget use? एग्जैक्टली तो जब आप दूसरा स्टेटमेंट लिखते हो तो आपने, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहेंगे, ऐसे का इंट्रोडक्शन का दूसरा स्टेटमेंट, उसमें ये दोनों सवालों का जवाब होना अनिवार्य है। और उन दोनों सवालों का डेवलपमेंट करना है आपको पहले सवाल का बॉडी पैराग्राफ 1 में और दूसरे सवाल का बॉडी पैराग्राफ 2 में, फॉलोड बाय कंक्लूजन। और याद रहे कंक्लूजन में भी वापस वही सवालों के, दोनों सवालों का जवाब वापस रिफ्रेश करके लिखना है। अगर आपने ये नहीं किया, आप कितना ही अच्छा ऐसे क्यों ना लिखो, आपको 5 5.5 बैंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये आपको समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट में तो मैंने बताया कि आपको जो जो मेरा कर्सर जा रहा है वो पहला सेंटेंस है, उसका पैराफ्रेजिंग करना है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट अगर देखेंगे, प्लीज रीड दिस गिवन। Given the importance of technology in every aspect of modern life, it is important that young children gain exposure to the internet and devices. बस यहाँ तक पढ़े। इसका मतलब ये जो है ग्रीन जो है, ये पहले सवाल का जवाब देता है, क्या ये अच्छा ट्रेंड है? तो हमने जवाब दिया हाँ भाई, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट इतनी अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं हम लोग, और हो रहा है कि अगर उसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है, हमें उसको एक्सपोजर देना ही पड़ेगा।
और सवाल जो दूसरा है कि क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए बच्चों के लिए अगर वो इंटरनेट यूज करते हैं। तो ये जो पर्पल में है वो दूसरे सवाल का जवाब है कि प्रोवाइडेड दैट पेरेंट्स मॉनिटर देयर एक्टिविटीज केयरफुली। तो रूल, क्योंकि हमें सवाल ये पूछा गया था कि कौन से रूल का इख्तियार करना चाहिए, तो रूल ये है कि हमें बच्चों को देना चाहिए, बट वी शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट बच्चे जो है उन पे निगरानी होनी चाहिए कि क्या वो मोबाइल का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं, क्या उसका इस्तेमाल गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। तो ये याद रहे आपको कि whenever you are utilizing or whenever you are writing a question based essay, you need to make sure that in the thesis statement you should be able to give answers to both the questions. Is it clear, Rajveer? Yes, sir. Okay, so let us go ahead with the next. दूसरा लेते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। Please read introduction. Paraphrase the question. This essay will discuss question 1 plus question 2. Okay, then ये जो आपका इंट्रोडक्शन है, मैं ज्यादा इस जो सेशन है उसमें मैं इंट्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता चले कि बॉडी पैराग्राफ 1 में तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना है। इन बॉडी पैराग्राफ 1 यू नीड टू गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इन बॉडी पैराग्राफ 2 यू नीड टू गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड फाइनली कंक्लूजन। लेकिन उसके पहले आपको इंट्रोडक्शन तो ठीक से लिखना पड़ेगा। तो पहली लाइन जो होगी, इट इज गोइंग टू बी पैराफ्रेजिंग द इंट्रोडक्टरी द क्वेश्चन, जो मैंने बताया अभी। और बाद में आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, दिस ऐसे विल डिस्कस गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 प्लस एंड करके कंजंक्शन का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादातर केस में कॉमा करके कंजंक्शन कीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भैया ये जो है ये दूसरे सवाल का भी जवाब दे रहा है। गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इज इट ऑल क्लियर एवरीबॉडी? फर्स्ट ऑफ ऑल, राजवीर, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन, सो लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। वापस रीड कीजिए, ये हमने जो किया था वापस कीजिए, रीड कीजिए इसको। इन सम पार्ट्स, Some parts of the world, it is becoming popular to research the history of one's own family. Why might people want to do this? Is it a positive or a negative development? वेरी गुड। तो मुझे बताने का कष्ट करेंगे राजवीर जी, पहली लाइन में मैं क्या करूंगा, कौन सी लाइन का पैराफ्रेजिंग करूंगा मैं? Sir, the first line only, like in some parts of the world is becoming पॉपुलर research द हिस्ट्री ऑफ वंस ओन फैमिली। तो जरा नीचे का जो पैराफ है इंट्रोडक्शन का, उसकी पहली लाइन पढ़े। It is becoming more and more common for people to seek information about their ancestors and family history. बस, अब मैं चाहूंगा सारे लोग उसको गौर से देखें, मैं चाहूंगा सब लोग इसको गौर से देखें एंड टेल मी एग्जैक्टली वेदर दिस इज इट इज कन्वेइंग द सेम मीनिंग एज द अंडरलाइन स्टेटमेंट। पहले इसको देखें और इसको देखें और मुझे बताया कि क्या वही चीज का पैराफ्रेजिंग है या नहीं। राजवीर जी, Yes, sir. is it clear everybody? Is it the paraphrasing of the first sentence or not? Yes or no? Write in the chat box. I want you people to make sure that you don't commit mistake. Is it clear everybody? I am trying my level best to make sure that you understand it properly, क्योंकि काफी बच्चों को अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें जरा वापस पढ़ो। I think mainly because they want to have fun or learn about how their families have changed through time. But I personally disapprove of this practice. तो कैन यू टेल मी राजवीर दैट जो ब्लू जो है वो क्या है, वो किसका जवाब है? Blue. Sir, the second part. Is it a positive or a negative? No. Read it again. क्वेश्चन कौन सा है पहला? Why might people want to do this? क्यों लोग अपनी हिस्ट्री जानना चाहते हैं? तो ये सवाल जो है या ना, तो उसका जवाब ब्लू में है। ब्लू वापस पढ़ो। I think this is mainly because they want to have fun or learn about how their families have changed through time. Exactly, वो देखो गौर से राजवीर, यू गौर से वो देखो, वो पहले सवाल का जवाब है। ये इसलिए जानना चाहते हैं कि उनको मजा आता है कि भाई उनकी फैमिली किस हिसाब से चेंज हुई है समय के साथ। ठीक है, और दूसरा सवाल कौन सा है? वापस पढ़ो। Why might people? Is it a positive or a negative development? तो आप जरा मुझे बताओ कि आपने क्या लिखा है, बट आई personally disapprove of this practice. मतलब ये आप मानते हो पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? Negative. वेरी गुड। इज इट एवरीबॉडी, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस और नो? ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कंजंक्शन का इस्तेमाल कीजिए और आप देखिए बेहतरीन से बेहतरीन इंट्रोडक्शन लिख सकते हो आप। मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा, वापस देखिए, पढ़िए राजवीर जी। Some people think it would be a good idea for schools to teach every young person how to be a good parent. Do you agree or disagree with this opinion?
Describe the skills a person needs to be a good parent. ओके Introduction. ओके, आप ही समझाएंगे मुझे, पढ़े Sir, I need to explain the question or या पहले एक्सप्लेन? तो मैंने क्वेश्चन पहले ही कर दिया था, आप मुझे बताए कि पहली लाइन क्या है। Nowadays parenting is considered a very important role in almost every society. okay, so that is the paraphrasing of the first line, yes or no? Yes, Almost, yeah. Now what is the first question being asked? do you agree or disagree with this opinion? आपने क्या लिखा है? I think that The schools, I think that school students should definitely receive parenting training. तो आप इस चीज को एग्री करते हो या नहीं करते? Agree, sir, agree. तो मतलब ये समझते हो आपके स्कूल में ही एक अच्छा पेरेंट कैसे बना जाए उसके बारे में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, दूसरा सवाल क्या है? Describe the skills a person need to be a good parent. तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से स्किल्स चाहिए एक पेरेंट को एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए, तो उसका Yes, sir. सवाल देना पड़ेगा आपको उसी लाइन में कॉमा करके। Yes, चलो sir. वापस एंड। And also believe that effective communication and teaching are two of the most important skills a good parent should have. कौन सी दो स्किल्स के बारे में हमने बात की? Effective communication and teaching. वेरी गुड, सो ये हो गया। तो आप मुझे बताएंगे कि पहले बॉडी पैराग्राफ 1 के बारे में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं? Sir, the same point which should be relatable. जैसे कि बॉडी पैराग्राफ 1 में इस केस में मैं क्या लिखने वाला हूँ कि आई थिंक दैट स्कूल स्टूडेंट्स शुड डेफिनेटली रिसीव पेरेंटल ट्रेनिंग, पेरेंटिंग ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसका कारण क्यों मिलनी चाहिए वो बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखूंगा। और बॉडी पैराग्राफ 2 में किसके बारे में जिक्र करूंगा मैं? The second question, describe the skills a person need to be get to. उसमें मैं कौन से स्किल के बारे में जिक्र करूंगा बॉडी पैराग्राफ 2 में? Person need to be a good parent. नहीं, कैन एनीवन टेल मी कौन सी दो स्किल्स के बारे में मैं जिक्र करूंगा? आप ही ने तो बताया था। वेरी गुड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीचिंग। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीचिंग के बारे में मैं जिक्र करूंगा। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दैट इन बॉडी पैराग्राफ 2। क्यों इफेक्टिव कम्युनिकेशन? आपने ये सोचना है कि व्हाई, हर IELTS के ऐसे में व्हाई बाय डिफॉल्ट आता है, तो आपने ये समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, उसका कारण लिख के व्हाई, और टीचिंग क्यों जरूरी है उसका कारण लिख के व्हाई बॉडी पैराग्राफ 2 में। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, यस और नो? Is it clear for everyone? I want answers from everybody. Is it clear? Write in the chat box, students. मैं इतनी मेहनत से इतने दिल से सिखा रहा हूं तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कम से कम यस तो लिखे। क्लियर? ओके, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। कम से कम इतना करें ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ पाऊँ। ओके, ग्रेट। अब आप बढ़े वापस। It is predicted that robots are going to become increasingly important in our lives. How would robots be used in the future? Will this development be a positive or a negative development? तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आई वांट यू टू एक्सप्लेन मी द ऐसे। मैं सारे बच्चों को ये कहता हूँ कि आप जब IELTS देते हो एग्जाम, कृपया करके एक ऐसे जो है आपके सामने आता है उसको 5 से 6 बार पढ़े। मैं काफी बच्चों को देखता हूँ जल्दबाजी में, बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ अननेसेसरली हश टाइप ऑफ नेचर, तुरंत लिखना चालू कर देते हैं। होता क्या है कि आप जब IELTS की एग्जाम देते हो आपके बाजू वाला लिखना चालू कर देता है, 5-7 मिनट में आधी सप्लीमेंट्री भर जाती है। और होता क्या है कि आप स्ट्रेस में आ जाते हो कि भैया मैंने तो अभी एक वर्ड भी नहीं निकाला और बाजू वाले की आधी सप्लीमेंट्री खत्म हो गई है, एंड यू स्टार्ट अननेसेसरी गेटिंग पैनिक्ड। प्लीज डोंट वरी स्टूडेंट्स, याद रहे कि 40 मिनट बहुत ज्यादा समय है आपको पूरा ऐसे लिखने के लिए। 30 मिनट में पूरा ऐसे हो जाएगा, तो आप 5 मिनट कृपया एक ऐसे को 5-5 बार पढ़े। Rajveer, can you explain me the essay? Yes, sir. Sir, the essay, what the meaning of essay is like, if robots are will be a part of our lives in future, so will it so how will it affect in the development? Will it be a positive or a negative? ओके, पहले नहीं, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक। पहले ये आपको कहा है कि देखिए अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट मतलब हमारी लाइफ में ज्यादा उसका उपयोग होना लगेगा। इंक्रीजिंगली, सो दे आर यूटिलाइजिंग अ कंपैरेटिव डिग्री, कि जहां पे अभी जो इस्तेमाल होता है रोबोट्स का उससे भी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है भविष्य में। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन टैग इज टेलिंग। क्वेश्चन क्या है कि हाउ कुड रोबोट्स बी यूज्ड इन द फ्यूचर, रोबोट्स का इस्तेमाल भविष्य में कहां पे होगा, पहला सवाल नंबर 1। और दूसरा सवाल क्या है राजवीर? Will this development be a positive or a negative development? क्या ये डेवलपमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? सो लेट अस ट्राई टू राइट द इंट्रोडक्शन। कैन एनीवन राइट एन इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स? क्या आप प्रयत्न करोगे इंट्रोडक्शन लिखने के लिए?
पहला काम क्या करना है आपको, पैराफ्रेजिंग करना है पहला। दूसरा सवाल जो थीसिस स्टेटमेंट है उसमें आपको हाउ कुड रोबोट्स बी यूज्ड इन द फ्यूचर उसके बारे में लिखना है, और एक ही लाइन में क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मिनट्स स्टूडेंट्स। मैं चाहूंगा काफी बच्चे यहाँ पे लिखे, टाइप करके दे मुझे, तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा, और मैं आपको गलतियां भी निकालूंगा कि आपकी कहाँ पे है। प्लीज, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। राजवीर, यू कैन ऑल्सो राइट। Yes, sir. आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। Write in the chat box once you are done. पहले ये सोचो कि रोबोट्स का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, एंड क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट। उसके लिए तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि भाई ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट, दैट्स इट। राजवीर, पूरा लिख के मुझे बताओ। आई वांट एवरीबॉडी टू राइट द एंटायर इंट्रोडक्शन। पूरा इंट्रोडक्शन लिख के मुझे बताओ, और मैं यहाँ पे फोकस करूंगा ताकि आपको पता चले मिस्टेक्स कहाँ पे होती है। The first line is going to be paraphrasing. कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं रोबोट्स, बताएंगे? चलो मैं थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपकी हेल्प करता हूँ। कैन एनीवन टेल मी वेयर कैन रोबोट्स बी यूज्ड इन द फ्यूचर? कैन एनीवन टेल मी वेयर रोबोट्स कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर? तो आपका काम आसान हो जाएगा। कहाँ पे हो सकते हैं रोबोट्स इस्तेमाल भविष्य में? पहले ये तो सोचना पड़ेगा। वेरी गुड। रेस्टोरेंट में हो सकते हैं, हॉस्पिटल में हो सकते हैं। वेरी गुड। तो वही तो आपको करना है, वही तो लिखना है आपको। प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं, वर्षा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। डिलीवरी के लिए आप देखते हो, आप स्विगी के में ड्रोन से डिलीवरी होती है, शायद रोबोट से डिलीवरी हो भविष्य में। वेरी गुड। अब बताओ, अब लिखो। बहुत सारा मत लिखना, सिर्फ दो ही आपको सेक्टर, मतलब दो ही सेक्टर पकड़ो जहां पे इनका इस्तेमाल हो सकता है, उसके बेसिस पे आप इंट्रोडक्शन लिखे। आई वांट एवरीबॉडी टू डू दैट, एंड डोंट गूगल इट। आई बी एबल टू नो दैट। चलिए, आई वांट आंसर्स। एक आध आदमी अगर लाए यहाँ पे तो आई कैन शो इट ऑन द नेट, आई मीन शो इट ऑन द स्क्रीन। कितनी अच्छी एक्सरसाइज का आपको मौका मिल रहा है। आई डोंट वांट एनीवन टू एटलीस्ट मेक श्योर। या पंकज, आई वांट, आपने लिखा तो है, सो आई वांट द थीसिस स्टेटमेंट, आपका इंट्रोडक्शन ही है। ओके, केएस हैज रिटन। ये किसी ने लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है, नाउअडेज इट इज ऑफ्टन आर्ग्यूड बाय पीपल दैट रोबोट्स विल मोर पार्टिसिपेट इन ह्यूमन लाइव्स इन फ्यूचर। ये आपका यहाँ पे फुल स्टॉप कर दीजिए। जिसने भी लिखा है, आई डोंट रिमेम्बर इट, जो भी है यहाँ पे उसको फुल स्टॉप कर देना है। ये आपका पैराफ्रेजिंग हो जाएगा, एंड देन यू नीड टू राइट द सेकंड थीसिस स्टेटमेंट में ये दोनों सवाल का जवाब होगा। बच्चे सारे गौर से देखिए, पहला जो सेंटेंस होगा, अब यहाँ पे दूसरा, जहां पे मेरा कर्सर है, यहां से आपको ये दूसरा थीसिस स्टेटमेंट में दोनों सवाल का जवाब देना है। क्लियर? ओके, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? पता चला मैं क्या बता रहा हूँ? ओके, ये क्या है? श्रवणी हैज रिटन, लेट मी सी व्हाट शी हैज रिटन।
श्रवणी, I mean, I don't understand. You need to make sure पहली लाइन आपकी पैराफ्रेजिंग और दूसरी लाइन को मिक्स मत कीजिए आप। सब लोग इसको गौर से देखिए, पहली लाइन जो है अलग हो जाएगी, ये जो लाइन है आपकी वो पूरी अलग हो जाएगी। You are mixing all the things. Please don't do that, students. Okay, कौन और बताएगा? आप मिक्स कर रहे हो? ये भी मिक्स हो रहा है। चलो चलो स्टूडेंट्स, चेंज करके बताओ मुझे। पहली लाइन, दो ही लाइन होगी। पहली लाइन इज गोइंग टू बी द पैराफ्रेजिंग ऑफ दिस, इसका पैराफ्रेजिंग हो जाएगा, इसका पैराफ्रेजिंग हो जाएगा, और दूसरी लाइन में ये दोनों सवालों का जवाब। इससे ज्यादा अच्छी तरह से मैं कैसे समझाऊं स्टूडेंट्स आप लोगों को? टेल मी। मतलब दुनिया में मेरे जैसा इससे अच्छा तो कोई सिखा ही नहीं पाएगा आपको कि मैं सीधा बोल रहा हूँ, पहली लाइन में पैराफ्रेजिंग कीजिए, दूसरी लाइन में दोनों सवाल का जवाब लिख दीजिए। सिंपल सी तो बात है। चलिए, who is going to try? चलिए 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 फटाफट। किसका है आंसर? सीखर हैज रिटन, वेरी गुड। लेट मी सी व्हाट सीखर हैज रिटन। लेट मी सी। ओके, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, एंड लेट मी सी वेदर यू पीपल हैव रिटन राइट और नॉट। ओके, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है। Some one of you has written, in coming days robots will play important part of our lives. ठीक है, चलो। Robots can be used as defense in Indian Army as well as in shopping malls billing counters. और इसको मिक्स कर दीजिए। Indeed, it is a positive development in human invention. ये कर सकते हो आप शिखर, but I want you people want you to add this, and I believe it is a positive development. वैसे करके इसको आप एक ही सेंटेंस में डाल दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, फिर किसने लिखा है? ये उर्वशी ने लिखा, इन द मॉडर्न यूजर रोबोट्स आर बिकमिंग वैल्यूएबल पीपल्स लाइफ। हाँ, ओके, ये भी बहुत अच्छा है। उर्वशी हैज आल्सो रिटन राइट। ये भी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। इन मॉडर्न एरा यूजेज ऑफ रोबोट इज बिकमिंग मोर वैल्यूएबल इन पीपल लाइफ। फुल स्टॉप करके ये स्टार्ट करें तो आप कैपिटल से स्टार्ट करें। There are many fields, fields where use of robots, where the robots can be used, such as in hospitals as well as in production. And according to my point of view, it is a positive development. उर्वशी, आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही है, थोड़ा सा आपको ग्रामेटिकली चेंज करना पड़ेगा, बट फॉर्मेट आपका बिल्कुल सही है। ओके, any other students? Yes, any other students who has written this? Okay, great. So now I believe, is it now clear everybody? Is it now clear everybody? कैसे करना है? अब देखते आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? You will have to do one thing. Yeah, Oppo robot is one type of equipment. Yeah. Jansruth has written. Okay, it's an external equipment can be used in hospital. ये आपने जनश्रुत दो लाइन वापस चेंज कर दी है। मैंने बताया वैसे एक ही लाइन में डालो इसको, otherwise it is very good. Okay, then who has written? Lakshmi Lalwani. It is true that nowadays robots has increased. Just a minute. ये मैं एक और स्टूडेंट का लेता हूँ। लेट मी सी। या ये इन्होंने लिखा है कि इट इज ट्रू दैट नाउअडेज रोबोट्स हैव इंक्रीज्ड द यूज ऑफ रोबोट्स। The use of robots has increased in our day-to-day life. In future, robots are going to be used in hospitals and production sectors. And I think this will be there का spelling गलत है. This is a positive development in our life. तो ये भी आपने फॉर्मेट बिल्कुल सही लिखा है भारती जी, लेकिन मैंने बताया वैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर नाउ एवरीबॉडी? यस और नो? अंडरस्टूड? ये किसने लिखा है? पंकज, ड्यू टू एडवांसमेंट इट इज हाईली प्रोबेबल रोबोट्स आर गोइंग टू प्ले वेरी गुड। ये सबसे अच्छा अब जो पूरा निकल के आया है वो पंकज जी ने लिखा है। मैं उसको वापस यहाँ पे लास्ट होगा ये, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। लेट मी सी, लेट मी पुट इट। ये बच्चों के लिए है, इसको आप गौर करें। यहाँ पे मैं ओके, जस्ट अ मिनट। This is what a student has written, Pankaj. बहुत अच्छा है। This is probably the best one. Due to advancement in technology, it is highly probable that robots are going to play a vital role in our lives.
robots can be used for delivering things or participating in armies. So I think it is a positive development. ये perfect है introduction, अगर आप लोग देख सकते हो तो. Is it clear or not? This is what is written by one of our students, Pankaj, and I believe that this is the precise. इसमें कोई भी grammatical mistake भी नहीं है. Is it clear now everybody? आप गौर से देख के मुझे बताओ. श्रवणी has also written. मैं ये ऑप्शन के लिए, हाँ ये भी बहुत अच्छा है. श्रवणी इज ऑल्सो रिटर्न, वेरी नाइस. लेट मी ऑल्सो कॉपी डाउन दिस फॉर यू पीपल. अब देखते हैं, जस्ट अ मिनट. Due to its magnificent capabilities, the demand for robots will increase in future. Robots are highly accurate, thus they can be used at shops for calculating the bill and production center. Indeed, it will bring a positive impact to the society. ये आप तीसरा सेंटेंस श्रवणी लिख सकते हो. You can even add, but I recommend that आप एक ही सेंटेंस में उसको ऐड कर लीजिए तो बहुत अच्छा आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा. Any doubts, any students now? Any question, any doubts, students? क्लियर हो गया अब आप सब लोगों को? Write in the chat box. Please write in the chat box, students. Is it clear now? Yes or no? पता चल गया? काफी लोगों को पता चल गया होगा कैसे लिखा जाए. ठीक है, आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, आपने समझ में आ जाना चाहिए. अब इसका देखते कैसे इसका. या somebody will have to read. Rajveer, can you read? Yes, Rajveer, can you read? Just a minute, who's going to help me out? Yes, who's going to help me out reading this? Yes, fine. Just a minute. Yeah, who's saying? Write in the chat box. Yeah, who's going to help me out reading this? Okay. Yeah, Bharti, can KS, who is KS? Can you help me out, KS? KS? No, Yeah, sir. Yeah, can you read, my dear friend? Yes. What's your Thanks name, so by much. the way? Sir, Karthik. Okay, Karthik, can you read? I hope I'm not troubling you. I'm not bothering you. Yes, sir. Okay, please read. या आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है, कार्तिक. Hello. Yeah, Karthik, please read. So can I audio? Yeah, you are audible, absolutely audible. Please go ahead. Brainstorming. How could robots be used in the future? To replace humans in dangerous jobs, army, firefighting, or space exploration. Second point, in medicine, remote surgery, carers in aged care or hospitals. Second, will the increasing use of robots be a positive or negative development? Positive. People won't have to risk their lives. Pressure will be less. People won't have to risk their lives. Second point, pressure will be lessened on medical staff and medical system. तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपने ये जो है जो 5 मिनट आपको दिए जाते हैं उसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि आप पहले ये सोचना पड़ेगा. देखिए, इंट्रोडक्शन लिखने से पहले ही आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो थीसिस स्टेटमेंट ठीक से नहीं लिख पाओगे. तो आपने ये सोचना है कि भाई कहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल होता है. तो पहले हमने देखा कि भाई इनका डेंजरस जॉब जैसे कि आर्मी है, फायर फाइटिंग है. आप देखते हो काफी जगह पे आपने फायर फाइटिंग होती है तो उसमें हम जो फायर फाइटर्स होते हैं वो खुद अपनी जान को परवाह किए बगैर बचाते हैं. काफी बार वो भी मर जाते हैं. स्पेस एक्सप्लोरेशन में वैक्यूम के कारण काफी लोग मर जाते हैं, ऑक्सीजन होता नहीं. तो उसके बदले हम अगर रोबोट्स को भेजेंगे तो फायदा होगा. रिमोट सर्जरी में, और जहां पे फॉर एग्जांपल काफी डेवलप कंट्रीज में आप जानते हो बूढ़े लोग बहुत होते हैं लेकिन उनको देखभाल करने वाले बहुत कम होते हैं, तो वहां पे भी आप रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो. सवाल दूसरा ये है कि इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. हम मानते हैं बिल्कुल तरीके से कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी हैजार्डस ऑक्यूपेशंस में. और दूसरा उसका फायदा ये होगा कि मेडिकल स्टाफ पे और हेल्थ केयर सिस्टम्स पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा. अब यही चीज को आपको ये करोगे नहीं तो आप इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाओगे, तो आपको ये करना पड़ेगा. ओके फाइन. सो अब लेट अस रीड. कैन यू रीड, कार्तिक? नाउअडेज से पढ़िए आप जरा. Nowadays, robots are already a part of our lives, and experts predict that they will become even more prevalent in the coming years.
I believe that robots can be used in hazardous jobs and medical field in the future, and this development will be a positive one for the humanity. आप लोगों ने सबने इंट्रोडक्शन ट्राई किया, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। मैं बच्चों को कहता हूं कि यू हैव डन अ वेरी गुड थिंग, फैंटास्टिक जॉब। अब ये देखिए आपके सामने इंट्रोडक्शन है। रोबोट्स आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट दैट दे विल बिकम इवन मोर प्रीवलेंट। प्रीवलेंट मतलब ज्यादा लाजमी हो जाएगा उनका उपयोग इन द कमिंग ईयर्स। जो ब्लू वाला जो है इज गिविंग आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कुड रोबोट्स बी यूज्ड इन द फ्यूचर। आई बिलीव दैट रोबोट्स कैन बी यूज्ड इन हैजार्डस जॉब्स एंड मेडिकल फील्ड इन द फ्यूचर। और बाद में एंड करके हमने ये सवाल का जवाब दिया है कि क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो हम ये बता रहे हैं कि दिस डेवलपमेंट विल बी अ पॉजिटिव वन फॉर द ह्यूमैनिटी। इज इट क्लियर एवरीबडी, यस और नो? अंडरस्टूड? एनी डाउट्स और क्वेरी स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको डेवलप करना है प्लीज पढ़िए क्लियरली। हेलो, Yes, या sir. क्लियरली? How could robots be used in the future? ओके, Uh, सॉरी Clearly, सॉरी, या प्लीज, fine, sir. या प्लीज Will गो। the increasing use of robots be a positive or negative development? नहीं, ये स्लाइड चेंज हो गई, आप पढ़िए, आपको स्लाइड आएगी। अब आई स्लाइड, बॉडी पैराग्राफ 1, Yes, sir. प्लीज रीड। तो पहले सवाल का जवाब, The, सवाल क्या है? the first use of robots is in dangerous jobs and healthcare. Currently, these humans that are sent to war or to fight fires or explore space. In the future, these tasks could be performed by robots. In addition to such roles, robots could also become more commonplace in hospitals and aged care facilities. For instance, they could be used to perform surgery in remote locations, and as artificial intelligence advances, they may also be able to interact with and support patients when nurses or carers are in limited supply. Indeed, such developments are already underway. यहाँ पे हमने दो, क्योंकि सवाल ये था कि रोबोट्स का इस्तेमाल भविष्य में कहाँ किया जा सकता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि द फर्स्ट यूज ऑफ रोबोट्स इज इन डेंजरस जॉब्स, जहाँ पे जान का खतरा है, और हेल्थ केयर में। अब यहाँ पे डेंजरस जॉब्स के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है कि ह्यूमंस को अगर हम फायर के लिए, फायर फाइट के लिए भेजेंगे, या फिर एक्सप्लोर स्पेस करने के लिए भेजेंगे, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए भेजेंगे, तो हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जान, अगर हम मनुष्य को भेजेंगे तो उनकी जान को खतरा है। फिर दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है कि इनका इस्तेमाल हेल्थ केयर में भी हो सकता है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि हॉस्पिटल्स में इनका इस्तेमाल होगा। आप देख सकते हो कभी कभार एक काफी वेल नोन सर्जन है, वो अहमदाबाद में बैठा है और किसी गांव में शायद किसी को बाईपास सर्जरी करवानी है, तो हम लोग यहाँ से रोबोट का इस्तेमाल करके विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर वी कैन ऑल्सो डू अ बाईपास सर्जरी। दिस इज व्हाट बेसिकली इट मीन्स। और उससे ये भी होगा, दे मे ऑल्सो बी यूज टू इंटरेक्ट विद एंड सपोर्ट पेशेंट्स। कभी कभार पेशेंट्स के साथ बैठने वाला कोई नहीं होता, उनको जरूरत होती है, उसके लिए नर्स रखनी पड़ती है, तो रोबोट्स वो काम करेगा। उससे क्या होगा, कल उठ के फॉर एग्जाम्पल कोरोना की महामारी आई थी, हमने देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेस की काफी मात्रा में हमें स्कैर्सिटी मिली, तो अगर रोबोट्स होते तो ये शायद चीज कर सकते थे। इज इट क्लियर? तो हमने पहले सवाल का जवाब दिया, हाउ कुड रोबोट्स बी यूज्ड इन द फ्यूचर। सवाल नंबर दूसरा, will the increasing use of robots be a positive or negative development? Yeah, please read. Karan, Kartik, yeah. Yes, sir. So, slide. Clearly, this advancements in robotics and And AI AI. will AI मतलब AI artificial will intelligence, yeah. Phil? okay, sir. Clearly, these advancements in robotics and AI will have a positive impact on society. By outsourcing hazardous tasks, human workers will be less prone to injury or death. If robots are able to extinguish fires or disarm bombs efficiently, society too will be safer. In the health sector, the demand for healthcare workers exceeds supply in many places, which means there is a Dire need. dire need for extra help. This demand will be met by robots with artificial intelligence in the decades to come. ओके, सो यहाँ पे हमने ये किया कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो कैसे है। तो हमने पहला कहा कि अगर हम हैजार्डस टास्क को रोबोट्स को दे दे, आउटसोर्स करना मतलब रोबोट्स को दे दे, तो ह्यूमंस को कम इंजरी होगी और उनकी मृत्यु भी कम होगी। हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे आग को बुझाने में, बॉम्ब्स को डिसार्म करने में। आप देख सकते हो काफी मूवीज में ह्यूमन बींग्स बॉम्ब्स को डिसार्म करते हैं। बॉम्ब अगर फट जाता है तो वो आदमी भी मर जाता है,
तो ये रोबोट्स काम करेंगे तो ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट में दूसरा ये है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो है काफी जगह पे नहीं पहुंच पाते, तो उसी वक्त हम रोबोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने ऐसा लिखा है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। याद रहे, आपने अगर थीसिस स्टेटमेंट में लिखा है कि इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो एक भी चीज आपको नेगेटिव नहीं लिखनी है बाद में, अगर आपको क्लिक होता है तो भी, वरना पूरा ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। सो मेक श्योर यू फॉलो व्हाट यू रिटन इन द थीसिस स्टेटमेंट। फाइनली कंक्लूजन। सर, या कंक्लूजन आ गया आपके सामने। डायर का मतलब क्या सर? डायर मतलब एकदम विपरीत परिस्थिति। डायर कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आपको विपरीत कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, या तो फिर जो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल क्या बोलेंगे, विपरीत। विपरीत इज द राइट वे आउट। क्लियर? नॉट फेवरेबल, डायर मतलब नॉट फेवरेबल। ओके, चलिए कंक्लूजन। Conclusion. There are ample benefits of robotics in the एम्पल future. का मतलब क्या होगा? एम्पल का मतलब बहुत सारे, Uh, मैनी, mm, मैनी बेनिफिट्स। ओके, there are ample benefits of robotics in the future. This include replacing humans in precarious occupations and saving their lives, लाइव। and also in the field of medicine for enhancing the healthcare system. And this is definitely a positive trend for the society. अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपने वही किया, जो इंट्रोडक्शन है उसी को आपने पैराफ्रेजिंग किया है। मैं यहाँ पे 2-3 शब्द ऐसे जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। एम्पल का मतलब मैनी, प्रिकारियस मतलब अनसेफ, ऑक्यूपेशंस मतलब बिजनेसेस, ऑक्यूपेशंस मतलब ऑक्यूपेशंस आपको पता है। तो यही चीज का हमने वापस पैराफ्रेजिंग किया है कि ह्यूमंस को अनसेफ सिचुएशंस में हम लोग नहीं भेजेंगे, रॉबोट्स को भेजेंगे। हेल्थ केयर सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल होगा, और हम वापस हमने वही चीज किया। दिस इज अ डेफिनेटली अ पॉजिटिव ट्रेंड फॉर द सोसाइटी। ये हो गया आपका पूरा ऐसे, एंड आई वांट यू पीपल टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन रेफर इट इन द फ्यूचर। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो। yes, is it done everybody? Is it fine? Absolutely clear? okay, so थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, but I hope this is understood now. Yeah, is it clear now? सब लोग आप मुझे पूछ सकते हो। भूमिका, you can also ask me. Karan, Janshruti, Shravani, Pankaj, anybody can ask me any question. Please let me know if you got any doubts. इसको वापस पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इसका रिकॉर्डिंग भी तो हुआ है। So in case if you want to, yeah, for this type of essay, yeah, I mean there is no such Pankaj fixed template for this type of essay. यही चीज आपको ध्यान रखनी है, and you don't need it even, Pankaj. So don't follow any template. You can go naturally, write naturally. You'll still get a good score. Don't worry. Sir, Okay. from Yeah. where, Judge- sir, yeah. from Tell me. where we can get these recordings? ये आपको रिकॉर्डिंग 1 या 2 दिन में मैं ही आपको यहाँ से ही आपको दी जाएगी, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। डोंट वरी, ठीक है? कल या Okay. परसों ही आपको रिकॉर्डिंग की लिंक मिल जाएगी। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच कार्तिक फॉर reading in front of people. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. I hope you enjoyed the session, everybody. Write in the chat box so that I can get to know whether you people have learned a lot of things or not. Did you learn today? Did you learn how to write an essay? Okay, very good. Thank you so much, students. Thank you so much. It's clear now. Thank you so much. Bhumika, is it clear now? Pankaj, Shravani? Yeah, I'll do that for reading as well. Don't worry. Thank you. Thank you, students. Thank you so much. Bye. Good night. Bye, sir. Thank you, Jansu. Yeah, I'll take one session for reading as well. Don't worry. Okay. Yeah, sure.